Dear student, good morning to all of you. Today we discuss here the fourth polyhalogen compound. This the name is called as the iodoform or triiodomethane. Clear? यानी हम लोग यहाँ फोर्थ पॉइंट देखने वाले बेटा किसका पॉलीहेलोजन कंपाउंड का। जो क्वेश्चन हमारा सेम था उसी को रिपीट कर रहे हैं लोग। राइट डाउन द यूजेज और साइड इफेक्ट और इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ अ पॉलीहेलोजन कंपाउंड। यू नो पॉलीहेलोजन कंपाउंड, poly means mainly, halogen means X. For example, a compound which contain more than one halogen, so it is called as the polyhalogen compound. इस एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल फोर्थ लिए आयोडोफॉर्म फार्मूला CHI3। ये कंपाउंड में बड़ा आयोडीन 3 है, इसलिए किस एग्जांपल है पॉलीहेलोजन कंपाउंड। ठीक है, तो डिफिनेशन आपको पता है कि जिसमें हैलोजन X ज्यादा होते हैं वो कंपाउंड को बोलते हैं पॉलीहेलोजन कंपाउंड। क्लियर? ओके, so we take the fourth polyhalogen compound. The name is called as iodoform or the triiodomethane. Why tri? Because it contains 3 iodine group. So this I3 is called as triiodo and the C is called as methane. So name is called as triiodomethane. ठीक है? Now we take the first uses and its side effect or environmental effect. Both are same. Side effect or environmental effect. Clear? तो start करेंगे आपको uses first. So iodoform, first of all we take the physical property of iodoform. जो चीज हम लोग स्टडी करते हैं तो पहले आप उसका नेचर देखते हो और बाद में उसका एप्लीकेशन देखते हैं, यूजेस देखते हैं। ठीक है, तो हम अभी क्या देखेंगे से यूजेस, सॉरी फर्स्ट वी टेक द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकंड वी टेक द व्हाट हियर यूजेस। तो पहले हम देखेंगे उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। सो iodoform और triiodomethane, so formula CHI3 is the molecular formula. ठीक है, you know molecular formula? Molecular formula means a compound which contain how many actual atom in a given compound is called as molecular formula. आपको पता है कि molecular formula में क्या चेक करते हैं हम लोग कि how many atom in a given compound or molecule called as a molecular formula. So molecular formula is what here CHI3 is the formula of what iodoform. Now we take the first what physical property. So it is yellow crystalline substance. इसका जो फर्स्ट कलर है, जो नेचर है वो कैसा है? It is yellow crystalline substance. What is crystalline solid? We take the unit number first solid state. इसमें दो क्वेश्चन आते हैं आपको, explain the or define the amorphous solid and crystalline solid. तो यहाँ पर ये जो iodoform है कैसे रिजल्ट है? Crystalline substance. What is crystalline substance? A substance which have a particular shape and a particular size called as a crystalline solid. What is amorphous solid? A solid which have a does not a particular shape and size. इसका शेप साइज नहीं होता है उसे बोलते हैं amorphous, इसका शेप और साइज होता है उसे बोलते हैं crystalline. For example, door have a special shape, so it is called crystalline solid or substance. Whereas a powder, so it is called as the example of amorphous solid. ये आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, ओके। सो इट इज येलो कलर इन crystalline substance with a disagreeable smell. इसकी स्मेल भी थोड़ी सी अलग से आती है, इसको बोलते हैं disagreeable smell। ठीक है, नाउ टेक द यूजेस। सो iodoform इट इज यूज्ड इन द मेडिसिन। जो मेडिसिन जो प्रिपेयर करते हैं तो उसमें कुछ कंटेंट जो है iodoform का भी होता है। फॉर एग्जांपल हीलिंग एजेंट। हीलिंग एजेंट मतलब क्या? हीलिंग एजेंट स्मार्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग, जैसे आपको पता है सर्दी वगैरह होती है, कोल्ड होता है, तो हम इनहेलर यूज करते हैं। सो इनहेलर आल्सो कंटेन अ iodoform इज यूज्ड एज हीलिंग एजेंट। व्हाट? हीलिंग एजेंट। सो बेस्ट एग्जांपल इज व्हाट है इनहेलर। जो हम जो आता है विस्क उसका यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है? iodoform होता है। So it is used as medicine purposes. What? iodoform. Next, we take the what? It is also used in the medicine as healing agent and also used as antiseptic in dressing of wound. Wound. The word wound means what? Wounds for injured. अगर हम कुछ for example हम खेल रहे हैं, कुछ जख्म लगती है हमको, जख्म पर what injured, तो injured part पर भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? iodoform as a what here? Antiseptic. So antiseptic is a one type of medicine which are added on the upper part of our body. So antiseptic, clear? So iodoform are used also as a what? Antiseptic for dressing of a injured part or of wound. Wound or injured part.
ठीक है। नेक्स्ट, इट इज आल्सो यूज एज लिमिटेड, यानी इसका यूज लिमिटेड होता है, क्योंकि आपको सभी को पता है कि जो मेडिसिन, जो भी हम लोग केमिकल, जो ट्यूब वगैरह या सायरप यूज करते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर क्या होता है, एक्सपायर डेट भी होती है। या फिर एक चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं, डॉक्टर ने 2 ml कहा तो 2 ml लेना पड़ेगा, क्यों, डिपेंड अपॉन द व्हाट एज, ज़्यादा करेंगे साइड इफेक्ट होगा, ठीक है, अगर बीमारी ना है फिर भी लेंगे साइड इफेक्ट होगा। तो ऑल सब्सटेंस ऑफ मेडिसिन और एनी केमिकल विच आर लिमिटेड यूज, क्लियर। सो आइडोफॉर्म आल्सो यूज एज लिमिटेड, ठीक है। नाउ वी टेक द साइड इफेक्ट। आपको पता है कि ईच एंड एवरीथिंग इन ऑल वर्ड विच हैव द सम साइड इफेक्ट एज वेल एज एडवांटेज कॉल्ड एज व्हाट यूजेस। सो वी टेक देयर फर्स्ट व्हाट disadvantage or what is the side effect of the third environmental effect of iodoform। यानी आइडोफॉर्म का environmental effect क्या होगा हमारी बॉडी पे अगर ज्यादा यूज किया तो, एक्स्ट्रा यूज किया तो, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट हियर इट इज causes irritations on eye and skin। थोड़ा सा अगर हम लोग उसके कांटेक्ट में गए तो अगर हमारे आंख के कांटेक्ट में आए, थोड़ा सा हमारे आंख को तकलीफ होगी, ये हमारे जो स्किन है उसके ऊपर थोड़ा सा खुजली टाइप में आएगा। इट इज कॉल्ड व्हाट हियर, इट इज कॉजेज इरिटेशंस ऑन आई एंड स्किन, फर्स्ट यूजेस का। सेकंड, इट मे बी कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लाइक ब्रीथिंग। अगर ज्यादा से कांटेक्ट ले गए तो हमको थोड़ा सांस लेने में तकलीफ होगी, कॉल्ड इज द व्हाट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लाइक व्हाट ब्रीथिंग, यानी सांस लेने, इनहेलेशन यानी ऑक्सीजन लेने में तकलीफ होगी इसका ज्यादा अगर यूज हुआ, किसका, आइडोफॉर्म का, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हियर डिफिकल्टी, ब्रीथिंग डिफिकल्टी। नाउ इट इज आल्सो इफेक्ट ऑन डिजीनेस, इसकी डिजीनेस आ सकता है जाएगा बॉडी के अंदर, नॉसिया मतलब वोमिटिंग वगैरह हो सकती है। डिप्रेशन ऑन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये बहुत डेंजरस का इफेक्ट है, अगर ज्यादा यूज किया हमने तो इसका इफेक्ट क्या करता है, सीएनएस पे, क्योंकि आइडोफॉर्म एंड क्लोरोफॉर्म बोथ आर सेम नेम, बट ओनली चेक व्हाट हियर the chloroform contains Cl whereas the iodoform contains what I। तो दोनों का जो मेन जो इफेक्ट है वो क्या होते हैं, CNS। CNS called as central nervous system। Okay, so it is the first what iodoform is called as the usage of iodoform, the name is called as also the triiodicity, or what is the disadvantage side effect of environmental effect। ये दो मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्लियर है, इजी है, आपको सिर्फ एक बार उसको अंडरस्टैंड करना है, अपनी लैंग्वेज में यूज करके आंसर इसका लिखना है, क्लियर। ओके, नाउ वी टेक द फिफ्थ पॉइंट ऑफ अ सेम पॉलीहैलोजन कंपाउंड, इट यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट। क्वेश्चन वही है, सिर्फ यहाँ अलग अलग कंपाउंड को अलग अलग यूजेस और एप्लीकेशन लिख रही है। सभी कंपाउंड किसकी एग्जांपल है, पॉलीहैलोजन कंपाउंड की एग्जांपल है, ठीक है। नाउ वी टेक हियर द यूजेस। तो फर्स्ट नंबर व्हाट हियर, fifth compound of polyhalogen, the name is called as freon। The fifth compound of polyhalogen called as freon। Freon, it is a compound which contain a carbon, fluorine, chlorine, so it is also called as fluorocarbon। F means fluoro, C means fluoro, and this is called as carbon, so it is the freon is also called as fluorocarbon, clear। और it is also available in a market as represented as what here, like that of trichlorofluoromethane, उसी की एग्जांपल है trichlorofluoromethane और dichlorofluoromethane। in the market it is represented as freon 12, freon 12 and freon 22 and so on। so it is R22 or R12 is a grade number, which contain different quantity of chlorine। 3Cl, so name is also changed, 2Cl, depend upon the Cl quantity, name also change of the freon, ठीक है। so we take the freon is also called as fluorocarbon। we take the first usage of this freon, ठीक है। so it is a organic compound, freon is a organic compound, why, because this contain what here, chlorine, fluorine as well as carbon, so it is an organic compound। you know what is organic compound? Organic compound especially it is defined as a compound which contain a carbon, जिसमें हम लोग कार्बन की स्टडी करते हैं क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है।
ओके, so it is organic compound of chlorine fluorine. इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, कार्बन है लेकिन इसमें क्लोरीन भी है और फ्लोरीन भी है, तो इसको बोलते हैं CFCS, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में CF क्लोरो फ्लोरोकार्बन्स, क्लोरो या इसको ऐसा पढ़ो क्लोरो फ्लोरोकार्बन्स, फर्स्ट क्लोरो F फ्लोरो CS कार्बन्स, क्लोरो फ्लोरोकार्बन्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ क्लोरीन फ्लोरीन, इसकी इंपॉर्टेंट दो चीजें क्लोरीन फ्लोरीन। नाउ यूजेस, इट इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट एजेंट इन ब्रैकेट कूलिंग एजेंट, यानी इसका जो बेस्ट जो इसका यूज है वो यूज करते हैं फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर में, इसको एज अ व्हिच एजेंट, कूलिंग एजेंट, व्हाट हियर कूलिंग एजेंट इन द रेफ्रिजरेटर। इन द मार्केट इट इज रिप्रेजेंटेड एज, मार्केट में अलग अलग फॉर्म होता है, जैसे कुछ मेडिसिन होती है, मेडिसिन के नेम अलग होते हैं, कंटेंट क्या होता है, इक्वल होता है, जैसा होता है। सो इन अ मार्केट इट इज रिप्रेजेंटेड एज डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, ये का एग्जांपल है फ्रीऑन की, डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन फ्रीऑन 12। सो नेम ऑफ फ्रीऑन 12 मींस अ ग्रेड 12। सो फ्रीऑन 12 कंटेन अ व्हिच कंपाउंड, डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन। Question put, what is freon 12? So freon 12 contain 2Cl, 1F or 1C. So it is called as dichlorofluoromethane, freon 12. Next, other trichlorofluoromethane. It contains 2Cl, so it is called as freon 12. It contains 3Cl called trichloro. The name is called R22, and so on. Depend upon the quantity of halogen of the Cl. Cl अगर बढ़ रहा है तो नेम चेंज हो रहा है, नेम चेंज होने ग्रेड भी क्या होता है, 12 है, यहाँ पर क्या है 22 आया, ठीक है, एंड सो ऑन। नाउ इट इज आल्सो यूज्ड एज सॉल्वेंट, ओके। सो ये बहुत सी केमिकल रिएक्शन में इसका क्या यूज करते हैं, एज अ सॉल्वेंट भी यूज करेंगे, एंड अ ब्लोइंग एजेंट, इन फॉर्मिंग एंड पिकलिंग मटेरियल। फॉर्म वगैरह बनाना है तो फॉर्म वगैरह जो होता है, ठीक है, तो स्प्रे वगैरह होता है, इसमें भी हम इसका यूज करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, ठीक है। और पिकलिंग मटेरियल, किसी मटेरियल को पिकलिंग करने के लिए, उसको जो है तो सोल्यूबल करने के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इसका यूज है, किसका, फ्रीऑन, और सेकंड इज कॉल्ड है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी कहते हैं। ये अलग अलग नेम उसके मार्केट में अवेलेबल है, फ्रीऑन 12 में क्या होता है, डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन होता है। नेक्स्ट R22 उसमें क्या होता है, ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन होता है, इसके नेम अलग अलग होते हैं। नाउ we take the side effect or environmental effect of freon, okay। So we take the side effect or environmental effect of what here, freon, clear। So in the freon, the chlorofluoromethane responsible for ozone depletion in stratosphere, यानी सबसे डेंजरस का यूज होता है टू डिप्लेशन ऑफ ओजोन। इस ozone it's a molecular formula of what O3 is a electron of dioxygen or oxygen, यानी ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है ओजोन है, इसका फॉर्मूला O3 होता है। तो ओजोन डिप्लेशन आपको पता है, ओजोन लेयर तो अलग अलग, यानी एक्चुअल तो ओजोन कहाँ पर है, एटमॉस्फेयर में, और कौन से रीजन में, स्ट्रेटोस्फेयर में। तो डायरेक्टली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो कहाँ से जाएगा, अर्थ पे से कहाँ पे जाएगा, डायरेक्टली स्ट्रेटोस्फेयर में जाएगा, और वहां जाने के बाद ओजोन की लेयर को कम करता है, इट बिकम अ लाइक ऑफ अ थीम। उसकी जो लेयर है, जैसे अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला जो है वो अम्ब्रेला के सपोज करते एग्जांपल ओजोन लेयर है, तो उसको जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादा अगर यूज करते हो तो डायरेक्टली क्या जाएगा, वो स्ट्रेटोस्फेयर में जाएगा, और वहां से क्या क्रिएट करेगा, डिप्लेशन ऑफ ओजोन। डिप्लेशन मतलब चेंजिंग द थिकनेस ऑफ ओजोन। अगर ओजोन की लेयर कम होती है किसके रीजन की वजह से, फ्लोरोकार्बन की ज़्यादा यूज से, तो यहाँ पर इसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं अर्थ पर, जैसे कि ग्लेशियस जो होता है, ग्लेशियस ऑन माउंटेन वो कम हो जाता है, सुनामी वगैरह भी आ सकती है, ये सब इसका साइड इफेक्ट है, किसका, फ्लोरोकार्बन का। ये पहले इफेक्ट क्या करता है, ओजोन डिप्लेशन करता है, और ओजोन कहाँ पर है, स्ट्रेटोस्फीयर में है, ठीक है। सो the chlorofluorocarbon or methane responsible for ozone depletion in stratosphere. Then second, regular large inhalation of freon
रिजल्ट इन ब्रीथिंग प्रॉब्लम एंड ऑर्गन डैमेज। और सेकंड जो मेन इंपॉर्टेंट जो साइड इफेक्ट है इसका, अगर ज़्यादा अगर यूज़ किया उसका इनहेलर किया, क्योंकि फ्रीज हर एक घर में होता है, अगर ज़्यादा फ्रीज का अगर यूज़ करते हैं हम लोग, इसको ओपन और क्लोज करते हैं, तो फ्रीऑन उसमें ऐड होता है, रहता है इन द फॉर्म ऑफ कूलिंग एजेंट। तो ज़्यादा अगर फ्रीज की मटेरियल को यूज़ किया तो हमारी बॉडी में भी जाएगा, और बॉडी में जाने के बाद वो क्या क्रिएट करेगा, रिजल्ट इन ब्रीथिंग प्रॉब्लम। वो जो हम लोग फूड फ्रिज में रखते हैं, एक्चुअली फ्रिज जो है वो एज अ प्रिजर्वेटिव एजेंट है, लेकिन ज़्यादा अगर फ्रिज की चीज़ों का इस्तेमाल से भी क्या हो सकता है कि फ्रीऑन हमारी बॉडी में इंटर होगा और वो क्या साइड इफेक्ट क्रिएट करेगा, रिजल्ट इन ब्रीथिंग प्रॉब्लम एंड ऑर्गन डैमेज। कभी कभी हमारे बॉडी के जो ऑर्गन है जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और बहुत ही वीक होते हैं, वो उसकी वजह से डैमेज हो सकती है, चाहे उसकी वजह से ज़्यादा फ्रीऑन को इनहेल करने की वजह से। ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट अवर द फोर्थ पॉइंट, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स का यूजेस और एनवायरमेंटल इफेक्ट देखिए हमने पहले हाइड्रोफॉर्म का, और सेकंड है उसका ट्राइहाइड्रोमीथेन, इसका फार्मूला CH3 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिफ्थ वाला फ्रीऑन जो है कंपाउंड है जिसका नाम है फ्लोरोकार्बन कहते हैं, इसका उसका यूजेस देखिए वो क्या होता है, मार्केट में कौन से फॉर्म में अवेलेबल है, कौन से ग्रेड में होता है। इसे विट होता है ना, विट का अलग अलग नेम होता है, ठीक है ना, मार्केट में। ठीक है, तो वैसे ही इसका अलग अलग नेम होता है मार्केट में, इसका फ्रीऑन का। इसको ज़्यादा यूज़ करने से ओजोन डिप्लीशन हो सकता है, ठीक है, या फिर डायरेक्टली अगर इनहेल किया इन द फॉर्म ऑफ रेफ्रिजरेट कूलिंग एजेंट इसमें होता है, तो उसमें क्या होगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगा, ऑर्गन हमारे डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट द पॉलीहेलोजन कंपाउंड। देन अभी लास्ट वाला एक इसका कंपाउंड बाकी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।